कुछ सह गए, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। तुम गलत मैं सही के खेल में न जाने कितने रिश्ते बह गए। बाकी प्रेसिडेंट्स वास्ते एक होर है, कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। कभी कहते हैं कहना मनु बनाओ, कहना मनु बना, कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा। इसी कश्मकश में भूल गए कि अपना दिल कहाँ है। सो हुण मेरी तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ बीच बड़ी जबरदस्त पुरजोर अपील है कि अगले कुछ मिनट चाहे तुहानू बैठना पवे, ईवन तुसी बाथरूम टॉयलेट भी नहीं जाना, क्योंकि वी आर गोइंग टू लिसन टू अवर वेरी वेरी रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड, RI प्रेसिडेंट। कोई छोटी बात नहीं है। RI रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट साडे हिंदुस्तान चो रहे ने। वी आर गोइंग टू लिसन टू हिम। बिफोर दैट आई विल cost accountancy and company secretaryship. He heads the Skyline Group, engaged in real estate development in different parts of India. He is a member of many professional, social, cultural and charitable organizations. He is a trustee of Operation Eyesight Universal India, a Canada-based organization, Shelterbox UK. He joined Rotary in 1985. He is a member of the Rotary Calcutta Mahanagar and was district governor in 1999-2000. He was the director on the board of Rotary International for the years 2011 to 2013. He has held many positions at the international level. Prominent amongst them are: he was chairman of Strategic Planning Committee of Rotary International. He was chair of the Joint Committee on Partnerships of Rotary International and the Rotary Foundation. He was the chairman of Rotary India Literacy Mission, chairman of Rotary Foundation India. He is chairman of Rotary India Centennial Celebrations. He has helped Rotary add 2 countries to its fold, Bhutan and Maldives. Keenly dedicated to service, Shekhar has led some major service initiatives in India. Some of them are constructing 500 homes for tsunami survivors at Andaman and Nicobar Islands, starting the Shelter Kit program, which has served about 20 disasters in India, distributing more than 10,000 shelter kits, helping about 50,000 disaster victims. Healing Little Hearts, having not done more than 1,500 heart surgeries for children all over India. He has conceived, designed and scaled up the Rotary India Literacy Mission by starting initiatives like conceiving and starting the TEACH program. The program today has spawned the entire country of India. More than 3,000 Rotary clubs participate in this program, making it one of the largest programs of literacy and education by Rotary in the world. He has initiated construction of 5,000 plus toilets in rural West Bengal and the Swachh Bharat initiative benefiting 25,000 villagers. He has been instrumental in setting up 15 eye hospitals all over India. He is recipient of all the highest awards of Rotary International: Service Above Self Award, the Meritorious Service Award and the Distinguished Service Award. Shekhar is married to Rashi. Rashi is a stage actor and has performed in many plays across India. She is a past president of Innovi. They have 2 children, son Chirag, married to Geeta, settled in Delhi, and daughter Chandni, pursuing PhD in Delhi. They have 1 grandson, Veer. Shekhar's guiding mantra is service is the rent paid for the space we occupy on this earth. Ladies and gentlemen, Rotary International President for the year 2021 to 22, Shekhar Mehta. Now I request PDG
Upinder Kai, his better half, Ravinder Kai, Mrs. Balvinder Grover, to escort the chief guest to the rostrum. देखना भी सामने waiting one more time. Thank you. So I present before you our motivational speaker, Shekhar Mehta. Good morning. I'm absolutely delighted to be here in your district. What a pleasure it is. 2 साल बाद आ रहा हूँ, बहुत ही खुश हूँ। कल से सारे दोस्तों से मिला, बहुत सारे नए दोस्त बनाए भी और जाना कि मैजिक ऑफ रोटरीज डिस्ट्रिक्ट में कैसे हो रहा है और होता रहेगा। थैंक यू उपिंदर जी फॉर इनवाइटिंग मी। उपिंदर जी से स्पेशल रिश्ता है। प्रेसिडेंट था, मैं तो ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर थे एंड वी हैव ये रिश्ते ऐसे होते हैं जिंदगी भर के लिए बच जाते हैं। जैसे सुरेश के साथ है, हमारा बैचमेट था सुरेश, मैं गवर्नर था, ये भी गवर्नर था और इन सभी से रिश्ता बना हुआ है। सुरेंद्र सेठ जी को इतना बढ़िया स्पीकर है कि मैंने अपनी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस जब मैं गवर्नर था तो इन्हें इन्वाइट किया था बी स्पीकर ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस। एसपी सेठ जी का मैं ट्रेनर रह चुका हूँ। इट वॉज अ प्लेजर एब्सोल्युटली। सो मेनी अदर पीपल उपकार के साथ काम किया है। दुष्यंत ने हमारा कितना ध्यान रखा। लास्ट ईयर जब हम गए वहाँ माता के दर्शन पहली बार इसी ने कराए एंड सो मेनी अदर पीपल। बाबा से पुरानी दोस्ती है। ग्रोवर सुनील, तुमसे कल सुना पालमपुर का कितना बढ़िया काम हो रहा है। पवन तुम्हारे यहाँ पर आया हुआ हूँ। ब्रजेश, तुमने बहुत काम किया है, मुझे मालूम है। And Sachdeva ji, it was nice talking to you yesterday, and so many of you. And I may have missed out somebody, but my respect. संजीव कुमार से बहुत पुरानी दोस्ती। चेरन जी, आपने मेरा इतना ध्यान रखा है जब भी आया मैं यहाँ पे। एंड विपिन, देखो तुमने बुलाया था, उस समय आना नहीं हो सका, लेकिन आज तुम्हारे काम में ही, तुम्हारे ही गवर्नरशिप में आई एम हियर एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। Thank you, my friends, for all the love that you all have given to me. It's really wonderful. And when I see the incoming leadership, I'm very happy. Rohit, you and Anil, both of you, along with, of course, P.S. Grover. I admire your leadership, P.S. Let me tell you, I've already seen the जब हम चावल बॉयल हो गए कि नहीं, वो जरा सा एक निकालने से ही समझ में आ जाता है। तो एक इवेंट से ही समझ में आ जाता है साल क्या होने वाला है। इस हॉल में जगह नहीं बची है लोगों के बैठने की, which shows how dedicated the Rotarians are and what leadership you are showing. Wonderful. It's absolutely a delight. Unfortunately, Rashi could not come much as she would have liked. पर हमारी बेटी आएगी वहाँ पे और वो परसों चली जाएगी और परसों हम चले जाएंगे सिंगापुर another 7 days. और अगर वो मेरे साथ हर जगह जाती रही तब तो हो गया बेचारे का, घर में शायद कोई कभी रह ही नहीं पाएगी। So दोस्तों, आप में से कितने प्रेसिडेंट्स हैं, इनकमिंग प्रेसिडेंट्स? हाथ उठाएंगे? ओके, वेरी गुड। सो ये जो असेंबली है, दिस इज प्रोबब्ली द लास्ट इवेंट व्हेन यू विल बी रेडी टू स्टार्ट अ न्यू ईयर। एक अमेजिंग संस्था है रोटरी की। कई बार मैं देखता हूं कैसे एक दिन उगता है, शाम ढलती है, रात होती है, नया दिन आ जाता है, सीमलेसली, एब्सोल्युटली। रेनबो देखता हूं, उसके साथ कलर तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बहुत बढ़िया उससे भी बेहतर लगती है कैसे एक कलर दूसरे में मर्ज हो जाता है। कहाँ ब्लू इंडिगो में चला जाता है और इंडिगो रेड में, रेड ऑरेंज में, पता ही नहीं चलता है। उसी तरह से रोटरी का एक साल
खत्म हुआ ही नहीं, विपिन भसीन का साल चल रहा है और PS ग्रोवर का साल ऑलरेडी शुरू हो गया, तैयारियां शुरू हो गई। हर क्लब के अंदर में अभी प्रेसिडेंट काम कर रहा है, लेकिन आप ऑलरेडी कमान कस चुके हैं नेक्स्ट ईयर को स्टार्ट करने के लिए। सो प्रेसिडेंट्स, टेक दिस ईयर, ये जो आने वाला साल है ना, ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल आप बना सकते हो अगर चाहो तो। कई साल पहले, करीब 35 साल पहले मुझे ये मौका मिला था, और आज भी अगर मैं पलट के देखता हूं, इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट ईयर्स ऑफ माय लाइफ। जब मैं प्रेसिडेंट बना रोटरी इंटरनेशनल का, तो मेरा इंटरव्यू लिया था रोटरी मैगजीन में और पूछा कि शेखर जी, आपको अगर वापस मौका दिया जाए कि क्लब का प्रेसिडेंट बनना या रोटरी इंटरनेशनल का, तो अभी भी छपा हुआ है वहां पर, मैंने कहा था मैं अपने क्लब का प्रेसिडेंट बनना चाहूंगा। एज प्रेसिडेंट मैं 46 वीक में 40 देशों में गया, 30 प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट से मिला, लेकिन मैं रोटेरियंस को सिर्फ इंस्पायर कर सका, हैंड्स ऑन सर्विस का मौका नहीं मिला मुझे। PS ग्रोवर विल बी एबल टू गो टू ऑल योर क्लब्स और आपको मोटिवेट कर सकेगा 1 साल के लिए, लेकिन हैंड्स ऑन सर्विस तो जब क्लब का प्रेसिडेंट होगा तभी कर सकेगा, खुद कर सकेगा और अपने दोस्त जो उसके क्लब के मेंबर से उनके साथ कर सकेगा। तो ये मौका जाने वाला है, और उसके लिए सबसे बड़ी बात होगी सोच बड़ी रखना, हैव बिग ड्रीम्स। अगर ख्वाब बड़े हो गए ना तो काम नहीं बड़ा, क्योंकि हर चीज एक ख्वाब से शुरू होती है। ये संस्था ही ख्वाब से शुरू हुई। एक बंदे ने ऐसा ख्वाब देखा कि हम मिलते हैं, वो 4 मिले और आज 14 लाख पे पहुंच गए। हम तो अकेले ही चले थे जाने पे मंजिल पे, लोग आते गए और कारवां बनता गया, लोग आते गए और कारवां बनता गया, पर सोच एक ख्वाब से शुरू हुई। तो ऑल प्रेसिडेंट्स वो स्टार्ट ड्रीमिंग। सपना इतना बड़ा हो वो तुम्हारे साल में तो खत्म ही ना हो पाए। अगर तुम्हारे साल में खत्म हो गया तो वो सपना बड़ा नहीं है। जिसने पोलियो इरेडिकेशन सोचा उसने पोलियो का इरेडिकेशन देखा ही नहीं, लेकिन सपना उसका था। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोच के कि एक ऐसी संस्था है जिसका मतलब आप सोचिए क्या जुनून उन लोगों का था, क्या सोच थी उनकी कि उन्होंने सोचा हम दुनिया से एक डिजीज हटा देंगे। मैनकाइंड की हिस्ट्री में आज तक सिर्फ एक डिजीज गई है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, और वो है स्मॉल पॉक्स। और दूसरी अगर कगार पर बस जाने ही वाली है तो वो पोलियो है, वो हम सब के कारण है, रोटरी के कारण। पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इट इज, क्या जुनून था दिस ऑर्गेनाइजेशन। इट इज ऑल अबाउट ड्रीम्स, बिग ड्रीम्स। कोई भी चीज, जिन्होंने एक आजादी का सपना देखा तो देखा एक सपने से ही शुरुआत हुई थी। कोई भी बड़ा काम दुनिया में एक सपने से शुरू होता है, एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। और आप बोलेंगे क्या हमारा एक 40 दिन का क्लब, उसमें इतनी बड़ी क्या बात है? बात बड़ी है। आपका 40 बंदे का क्लब जो है वो जब 35,000 क्लब जब इकट्ठे हो जाते हैं ना तो मैजिक हो जाता है। ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है उसके साथ हम निपटने का ट्राई कर रहे हैं। What are the biggest problems in the world? Hunger, poverty, illiteracy, climate change, which is the environment, health. इन सारी चीजों से तो हम लड़ रहे हैं। Our 7 areas of focus are all these only. तो ये छोटी मोटी बातें नहीं है, इसलिए आपको ट्रेनिंग की जरूरत है। आप अपनी सर्जरी अनट्रेंड भाई साहब से कराएंगे क्या? नहीं कराएंगे ना। एक अनट्रेंड इंजीनियर के ब्रिज पर जाएंगे क्या? नहीं। तो आप भी अनट्रेंड क्यों रहेंगे जब आप इतनी बड़ी समस्याओं से लड़ रहे हैं? एक ब्रिज नहीं बना रहे हैं, आप दुनिया का ब्रिज बना रहे हैं। ये पोलियो ऐसे नहीं चला गया। इट इज वर्दी, दिस पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम। जब मैं प्रेसिडेंट बन रहा था तो मेरे इंटरव्यू में उन्होंने से पूछा तो मैंने कहा था वी आर वर्दी ऑफ द नोबेल प्राइज। व्हाई? बिकॉज टू मी पोलियो इरेडिकेशन इज लाइक अवर्टिंग द 3rd वर्ल्ड वॉर। जब पोलियो जब हमने लड़ना शुरू किया इसके अगेंस्ट, डेली 1000 बच्चों को पोलियो होता था, 1000 बच्चों को। हमारी फैमिली में एक बच्चे को पोलियो हो जाए, हम सबके दिलों पे पोलियो हो जाएगा।
1000 बच्चों को होता था, साल में 3.5 लाख बच्चों को होता था, इस साल 4 बच्चों को। लेकिन हमारे लिए वो 4 भी बहुत है। और अगर अरिथमेटिक अगर फैला लगाए तो आपको समझ आएगा कि 2 करोड़ बच्चों की जान बच गई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 2 करोड़ लोगों की जान गई थी। तो जो 2 करोड़ जाने गई, हमने 2 करोड़ जान बचाई, तो हमने एक वर्ल्ड वॉर को हटा दिया ना, रोक दिया ना एक वर्ल्ड वॉर। तो दोस्तों, दैट इज द पावर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। दैट इज व्हाई टेक द ऑर्गेनाइजेशन सीरियसली, डोंट टेक योरसेल्फ सीरियसली इन रोटरी। खुद को इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, रोटरी को इंपॉर्टेंस दीजिएगा। ईगो हम घर पे छोड़ के आएंगे रोटरी में जब भी आएंगे। तब ये सलाह मुझे किसी ने दी थी, हमारे एक पास कॉर्नर। सो हैव बिग ड्रीम्स। और मैं आपको बताऊं, अगर आप ख्वाब देखने लगते होंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कब वो पूरा हो जाता है। रोटरी में ये जो कनेक्टिविटी का पावर है ना, ये अमेजिंग है। जिसने पोलियो हटाने का सोचा, उसने, मैंने कहा ना, उसके कारण पोलियो नहीं हटा, लेकिन उस ख्वाब को देखने की जरूरत है। और फिर लोग जुड़ते गए और ये काम हुआ। मैं बताता हूं, मैं जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बन रहा था तो मेरे ट्रेनर ने मेरे से पूछा कि शेख बताओ तुम्हारा गोल क्या है। तो मैंने कहा जी, आई वॉन्ट टू बी एन आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। उसने कहा मैं तुमसे गोल पूछ रहा हूं। मैंने कहा वही बता रहा हूं। बोला ये गोल नहीं है, घर जाओ और अपने गोल्स लिख के लाओ। I tell you that day, that one sentence changed the course of my life. मैं घर गया, पहली बार लाइफ के अंदर में गोल्स सेट किए कि क्या करना है मुझे। 15 से 20 करीब मैंने सपने जो मन में आया उससे डाला वहां पर कि ये हो तो कैसा लगेगा। उनमें से एक सपना था और वो मिलेनियम था, साल था, टर्न ऑफ द मिलेनियम था। 99-2000 में मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था। तो टर्न ऑफ द मिलेनियम में उनको मैंने कहा मिलेनियम ड्रीम्स थे। तो ऐसे ही मीटिंग में हमारे जो प्रेसिडेंट थे वहां पर मैंने वो मिलेनियम ड्रीम्स, एक ड्रीम था, मैं बिल्डर हूं, बिल्डिंग बनाता हूं। तो मैंने सोचा क्या लगेगा एक ड्रीम, अगर 500 घर हम बना दें और हर एक के ऊपर में रोटरी का एम्ब्लेम रहे तो क्या बढ़िया है ख्वाब, क्या बढ़िया लगेगा। तो मैंने ये शेयर किया, एक वीडियो बनाया था, उसमें 10 मिलेनियम ड्रीम्स थे। वन ऑफ देम वाज दिस वाज द टफेस्ट वन। इट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, जमीन चाहिए, पैसे चाहिए, बिल्डिंग बनानी है। मैं तब 40 साल का भी नहीं था, पर ये ख्वाब देखा मैंने, शेयर किया सिर्फ प्रेसिडेंट्स के साथ में। 1 महीने बाद एक प्रेसिडेंट आता है, बोलता है सर कोई जमीन लेने तैयार है। बढ़िया बात है, ले लो। जमीन ले ली। उसी साल में एक 3H ग्रांट अप्लाई करी। एक 3H ग्रांट को 2 साल मिनिमम लगा करते थे। 25 जून मेरा साल खत्म होने वाला, 5 दिन बचे हैं। मेरे पास एक फोन आता है कि आपकी 3H ग्रांट अप्रूव हो गई है, 2.25 करोड़ रुपए की। दोस्तों 500 का ख्वाब था, लेकिन 300 मकान बन के रहे। जमीन मैंने नहीं ली, मकान मैंने नहीं बनाए, मैंने सिर्फ एक ख्वाब देखा था, लेकिन रोटरी के रोटेरियंस जुड़ के उन्होंने उस ख्वाब को पूरा किया। सो इफ यू आर रेडी टू ड्रीम, इट्स गोइंग टू बिकम। सो जैसा मैंने कहा कि these dreams have to be big, larger than life. Something that finishes in your year is not good. और शायद आप अनसक्सेसफुल हो जाओ, कोई बात नहीं। I would rather have 10 big dreams and fail in 4 of them than have one small dream and succeed in that. मंजिल मिल ही जाएगी भटकते हुए ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी, गुमराह तो हुआ है जो घर से निकले। कोशिश करके तो देखो यार, सोच के तो देखो, क्योंकि कोशिश करने वालों को उतना ही मिलता है, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। आप कोशिश करके जरूर होगा। और कई बार होगा, आप जब बड़े ख्वाब होगा ना तो लोग हंसेंगे। मैंने ये रोटी में समझ लिया, मैंने जिंदगी में जब जब बड़ा ख्वाब देखा है ना, लोग हंसे मेरे पीछे, और मैं तब समझ जाता हूं मैं सही राह पर हूं। बिकॉज इवन गांधी सेड दे विल फर्स्ट इग्नोर यू, देन दे विल लाफ एट यू, देन दे विल फाइट विथ यू, देन दे विल जॉइन यू एंड देन यू विल विन। ये होता है दोस्त, ऐसा ही होता है। अरे लोग क्या सोचते हैं ये भी आप सोचने लगोगे तो वो बेचारे क्या करेंगे? उनको सोचने दीजिए, आप तो अपने ख्वाब सजाइए,
build castles in the air, but to show a lot of effort to build the foundation below. और ये पॉसिबल है दोस्तों। हमने एक ख्वाब देखा कि इंडिया को टोटली लिटरेट करेंगे। ये इसलिए देखा कि मुझे लगता है कि हम लोग भी इस जगह पहुंच गए हैं, 100 साल इंडिया में हो गए हैं। अब हम लोग काम करते हैं, छोटे काम करने के दिन चले गए। अगर काम हो गए जैसे पालमपुर में हो रहा है, उधमपुर में हो रहा है, आदमपुर में हो रहा है, आई एम सो हैप्पी टू हियर ऑल दी वंडरफुल थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर डिस्ट्रिक्ट, बट आई थिंक यू हैव द पोटेंशियल कि हर क्लब के अंदर ये काम हो सकता है। आई हैव कम टू अ डिस्ट्रिक्ट व्हिच इज मोर प्रॉस्परस देन माय ओन डिस्ट्रिक्ट। रोटरी हमारे यहाँ पर शुरू हुई थी, एशिया में कलकत्ता में शुरू हुई थी, लेकिन लेट मी टेल यू व्हेन आई कम टू दिस एरिया एंड आई सी और मैंने पिछली बार भी कहा कलकत्ता में जो मर्सिडीज का एक शोरूम था, अब लुधियाना में 2 थे। So that is the power of this place. This unleash colleagues over there, yes, that is your responsibility. इस पावर को जागृत करने की जरूरत है। ये लोगों के अंदर जो किंडल, you have to kindle that spark within everybody कि हाँ इस काम को करना है और ये काम हमसे रोकने का नहीं, हमारे देश का है। The thought has been back. That is why we have another program of making India totally. क्यों? मुझे लगता है कि हम सब जिस तरह के लोग यहाँ बैठे हैं, पंजाब में ही आप अगर डिस्ट्रिक्ट को मिला है तो you are more than 7,000 people in the state of Punjab. Look at the caliber that is there. Your state chief minister will be happy to have 7,000 such people. सिर्फ उनका काम नहीं है, हमारा काम है। सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट जब मिल जाते हैं ना तो वंडर्स हो सकते, वंडर्स आते हैं। मिस चैन जो कि WHO की डायरेक्टर थी, वो हमारी कन्वेंशन में आई थी करीब 15 साल पहले, और उसने खड़े होकर कहा था बट फॉर रोटरी, ये WHO है जिसका काम है डिजीज हटाना, वो बोलती है बट फॉर रोटरी वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू डू इट फॉर अनदर 20 years. So friends, we are doing nation's work. मुझे लगता है मैं अगर अपना समय इतना दे रहा हूं इस काम के पीछे, तो मेरा काम इतना बड़ा होना चाहिए कि मेरे स्टेट पे फर्क पड़े, और क्योंकि मैं पास प्रेसिडेंट के लेवल तक पहुंच गया हूं तो वो कंट्री पे फर्क पड़ना चाहिए। अगर आप प्रेसिडेंट हो तो आपके मोहल्ले में, आपके सिटी के अंदर में उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। अगर आप पास गवर्नर हो तो आपके स्टेट पे उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। डायरेक्टर हो तो इंडिया भर में आना चाहिए, और पास प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड हो तो फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका इम्पैक्ट आना चाहिए। तो दोस्तों अब ये मत सोचो कि ये क्लब का प्रोजेक्ट है, ये इस देश का प्रोजेक्ट है। अगर आप ये जो आई हॉस्पिटल चला रहे हो, सो यू आर हेल्पिंग बिल्ड द आई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, उसके अंदर आप महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हो। आई डिड नॉट नो यू आर डूइंग सच ग्रेट वर्क इन आई। मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 14 आई हॉस्पिटल है। मैंने खुद ने 20 आई हॉस्पिटल अभी तक सेटअप किए हैं, एंड आई अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। उसके पास समय नहीं है कि वो अपनी माँ को 50 किलोमीटर दूर ले जाए, क्योंकि आसपास में कोई हॉस्पिटल नहीं है। 50 किलोमीटर एक बार नहीं, 3 या 4 बार ले जाना पड़ेगा, और वो डेली मजदूरी करता है, वो कर नहीं सकता है, चाहता है पर कर नहीं सकता है। तब रोटरी जाती है उसके घर पे, उसकी माँ की आई टेस्ट करती है, लेके आती है, सर्जरी करके वापस छोड़ के जाती है, और वो पहली बार अपने ग्रैंड चाइल्ड को देख पाती है। और ये आप डेली कर रहे हो, हजारों के लिए कर रहे हो आप। दिस इज गॉड्स वर्क ऑन अर्थ। वी आर फॉर्चुनेट, सही मैं बता रहा हूं कि वी आर फॉर्चुनेट कि हम रोटेरियंस है, इसलिए इस काम को बहुत सीरियसली ले लीजिए। ये ऐसे ही काम नहीं है। अबू बिन आदम सो रहा था तो सपने में उसने देखा एंजल कुछ लिख रही थी। अबू ने पूछा व्हाट आर यू राइटिंग? तो एंजल ने कहा आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ पीपल हु लव गॉड। तो अबू ने कहा मेरा नाम है? तो उसने कहा नहीं तुम्हारा नाम तो नहीं है। उसने कहा बट व्हाई? आई लव गॉड, आई एम डूइंग गॉड्स वर्क ऑन अर्थ, आई मेक द ब्लाइंड टू सी, आई मेक द लेम टू वॉक, आई हील द सिक। पर उस परी ने कहा नहीं आपका नाम नहीं है, चलिए। अगले दिन फिर एक बार सपना दिखा, फिर वही परी, फिर वही एंजल, शी इज राइटिंग समथिंग। अबू ने फिर पूछा व्हाट आर यू राइटिंग टुडे एंजल? द एंजल सेड टुडे आई एम राइटिंग द नेम्स ऑफ पीपल हु गॉड लव्स because they are doing God's work on earth, and Abu, your name is right at the top.
दोस्तों वो क्या कर रहा था? मेकिंग द ब्लाइंड टू सी। उधमपुर और पालमपुर में आप वही कर रहे हैं। मेकिंग द लेम टू वॉक, वो जो आपने आर्टिफिशियल लिम्स की कहानी बताई वहां वही कर रहे हैं। हीलिंग द सिक, जब हम पोलियो ड्रॉप्स दे रहे हैं, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। योर वेरियस हेल्थ कैंप्स, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। सो फ्रेंड्स, इट इज गॉड्स वर्क ऑन अर्थ दैट वी आर डूइंग। इसलिए इस काम को सीरियसली, जब सीरियसली ही ले रहे हो, इतना समय ही दे रहे हो, और अपना कैलिबर एक बार आप झांक के देखो, और आप सब पास गवर्नर से भी ये गुजारिश है, संजीव लग जाओ भाई वापस काम करो। एसपी, उन्हीं को वाला एसपी हो जाएगा, सोचो। लास्ट वाला जो था ना, जो ब्रेक वगैरह, तो उसको एसपी बोल रहे थे, सोचो। यार पोटेंशियल एक एसपी सेठी के घर पर रखा हूं, उसकी फैक्ट्री मैंने देखी है। दिस मैन इज अ कैलिबर है। कल ही मुझे बता रहा था, हिज फादर डाइड अर्ली। 3 ब्रदर्स, 3 भाइयों की, नॉर्मली फादर जब नहीं रहेंगे तो सब अलग हो जाते हैं। इसे 51 साल हमने जस्ट अभी सेलिब्रेट किए, तो कोई को बंदे में कैलिबर है। दुष्यंत मुझे आज स्टोरी बता रहा था, बोला सर 1 साल तक मैं हॉस्पिटल ही नहीं गया। हॉस्पिटल में मुझे ये लग रहा था कि मैं चला जाऊंगा तो लोग बोलेंगे जी आप किसको दिखाने आए, इसी का हॉस्पिटल है, बोलेंगे जी आप किसको दिखाने आए। क्या कर रहा था? लोगों की सेवा कर रहा था। So if that is the potential we all of us have, then I think it is important that our projects and programs have to be so big that रोटरी को मैं कहूँगा कर खुदी को बुलंद इतना, इस डिस्ट्रिक्ट में है, कर खुदी को बुलंद इतना कि हर प्रोग्राम से पहले चीफ मिनिस्टर तुझसे पूछे, बता ग्रोवर तेरी रजा क्या है। और मैं ये सीरियसली कह रहा हूं। Today we are at a position, let me tell you, जब अगर मैं आपको कुछ भी कह रहा हूं तो वो मैं कर चुका हूं, इसलिए कह रहा हूं। जब हम ये लिटरेसी का प्रोग्राम कर रहे थे, हमने डिसाइड कर लिया ऐसे ही कि इंडिया को लिटरेट करेंगे। क्रेजी था। अगर पोलियो एरेडिकेशन डिफिकल्ट था तो ये उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट। पोलियो में हमें ये तो पता था कि ये वैक्सीन है और 5 साल के कम के बच्चे को देखो और उसे वैक्सीन देना है। यहाँ लिटरेसी में कोई वैक्सीन नहीं, और अगर कोई वैक्सीन है भी तो हर 200 किलोमीटर पे चेंज हो जाता है वैक्सीन, क्योंकि लैंग्वेज चेंज है, करिकुलम चेंज है। तो पहले के जब मेरे ऊपर आया ये जिम्मा इसका, तो पहले 9 से 10 महीने तक मैंने सिर्फ रिसर्च किया, लोगों से मिला, समझा क्या करना है। मिनिस्टर से पहली बार कभी गलियारों में गया, मंत्रियों के उनसे मिला, ब्यूरोक्रेसी से मिला, मैं राइट टू एजुकेशन एक्ट जिन्होंने लिखा उनसे मिला, समझा क्या होता है। एंड देन फ्रेंड्स वी फॉर्मुलेटेड अ प्रोग्राम कॉल्ड द टीच प्रोग्राम। आज उस प्रोग्राम को 10 साल हो गए हैं। लेट मी टेल यू, बुलंदियों के झंडे गाड़ लिए हमने। Today, not only Rotary World के अंदर में, it is the biggest program of literacy in the entire Rotary world. It is one of the biggest programs of literacy in India itself. जब कोविड हुआ तो एक दिन मैंने प्राइम मिनिस्टर को सुना, वो कह रहे थे कि हम बच्चों को एजुकेशन घर पे देना चाहते हैं, while they are sitting at home because people were not going to school. तो मैंने इमीडिएटली नेक्स्ट डे चिट्ठी लिखी प्राइम मिनिस्टर को कि जी वी कैन हेल्प। पीएम से 5 दिन में वापस मैसेज आ गया, व्हाट इज इट दैट यू कैन डू। हमने कहा जी दिस इज व्हाट वी कैन डू। आपको करिकुलम पढ़ाना है लोगों को, आपको कंटेंट चाहिएगा ना वीडियो में दिखाने के लिए, हम आपको सारा कंटेंट देंगे क्लास 1 से लेकर 12 तक का अकॉर्डिंग टू द स्टेट बोर्ड। उन्होंने कहा दीजिए। हमने एक MOU साइन किया। ऑनलाइन कोविड के टाइम में आप लोगों में से कई रहे होंगे पास गवर्नर्स, जिस दिन हमने MOU साइन किया था, एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, निशंक जी पोखरियाल उस समय, एंड वी साइन द MOU। Friends, in 4 months' time, we gave them the entire curriculum, class 1 to 12, जो कि PM e-Vidya चैनल, उनके 12 चैनल से उन पर वो दिखाया जा रहा था। क्लास 4 का बच्चा चैनल 4 देख रहा था, क्लास 8 का बच्चा चैनल 8 देख रहा था। फ्रेंड्स, इतना कंटेंट दिया हमने उनको, यही चंडीगढ़ में बनाया हुआ कंटेंट दिया हमने, इतना कंटेंट कि अगर आप उसको रोज एक टेलीविजन सीरियल की तरह आधा घंटा देखें तो आपको 10 साल लग जाएंगे उस कंटेंट को। रिजल्ट वॉज 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NCERT को यूनेस्को का अवार्ड मिला उस कंटेंट के कारण। So friends, that is where Rotary can reach and has reached. उस समय मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर जी। भैया फोटो बाद में ले लेना, ठीक है, वो कर लेना।
5 साल या 6 साल पहले की बात है। आई वेंट टू मीट मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, ही वाज द एजुकेशन मिनिस्टर। उनसे दोस्ती हो गई तो मैं जाके उनको बताया कि जी ये इंडिया की लिटरेसी रेट 74% पे है, 75 साल से ज्यादा हो गए और अभी भी हम 74% पे हैं। क्यों? मैंने बताया सर, रिसर्च करके मुझे ये समझ में आया 95% बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं। 95% स्कूल जा रहे हैं तो फिर हम 74% पे क्यों हैं? मैंने कहा सर ये इसलिए है कि हमारे देश में 27 करोड़ एडल्ट इलिटरेट है, 27 करोड़ एडल्ट इलिटरेट है और 25 करोड़ स्टूडेंट्स हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो अगर ईच वन टीच वन कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है। जरूर पॉसिबल है। ग्रेट आइडिया शेखर जी। बोले समय है आपके पास? मैंने कहा हाँ। बोले चलिए भाई साहब अपनी गाड़ी में बैठाए, मेरे को लेके गए शास्त्री भवन गए हम, जो कि गढ़ है, सेक्रेटेरिएट है फॉर एजुकेशन मिनिस्ट्री। वहां पे बात हुई, बात करते करते बात इस जगह पर पहुंच गई कि जो ड्राफ्ट पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि अभी लागू हो गई है, उसकी ड्राफ्ट पॉलिसी आज भी मेरे पास है। उसमें 5 जगह पे मेंशन है रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन। मैं कह रहा हूं ना, कर खुदी को बुलंद इतना, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। टुडे दैट पॉलिसी इज बेस्ड ऑन व्हाट वी टोल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन, एंड टुडे इट इज गेटिंग इम्प्लीमेंटेड। जब शुरुआत हुई है और इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गोल वहां पर आप इंटरनेट पर जाकर देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एडल्ट लिटरेसी, एजुकेशन फॉर ऑल। वो बोलेगा गवर्नमेंट बोल रही है हम 5 करोड़ लोगों को लिटरेट करेंगे। आप अपनी वेबसाइट पर जाइए, रोटरी टीच की वेबसाइट पे जाइए, वहां लिखा है हम 5 करोड़ लोगों को लिटरेट करेंगे। 5 करोड़ को वो करेंगे, 5 करोड़ को हम करेंगे। 10 करोड़ अगर हम 2027-28 तक भी कर लेंगे तो 2031 में जो नेक्स्ट सेंसस है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इंडिया विल बी टोटली लिटरेट बिफोर दैट। And once again, just like polio, it will be Rotary who will have taken the lead. ये देश का काम है, यज्ञ है, इसमें हर एक को आहुति देने की जरूरत है। लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब इज एट 75% only. Men literacy rate is at 80%. Women literacy rate varies between 60 to 65%. 70% पे है। 30 औरतें अभी भी 100 में से इलिटरेट हैं। आप लेडीज, आपको मंजूर है? Are you ready to work for it? And are the men not ready to work for it? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे देश का हर बंदा लिटरेट हो? और इसको करने के लिए महज खर्च कितना लग रहा है? अगर ईच वन टीच वन वाला मॉडल हो ना, जहां हम स्कूलों में जाके हम बच्चों को बोल रहे हैं, क्लास 6 से अपवर्ड बच्चों को बोल रहे हैं आपको अपनी छुट्टियों में 1 बच्चे को पढ़ाना है। अभी लास्ट वीक के अंदर में 13 डीएवी स्कूल्स के 5000 बच्चों को ये सेशन दिया गया। ऑल 5000 आर एक्साइटेड टू डू दिस वर्क। डीएवी स्कूल्स जो है उनके 52 लाख शायद स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ एमओयू साइन हो गया हमारा। एंड अब स्कूलों के अंदर में जहां ये कर रहे हैं, वहां कॉस्ट लगता है सिर्फ 100 रुपए। 100 रुपए जहां ठहरे ना, बाहर जाके कॉफी पीजिएगा ना, 100 रुपए लग जाएंगे। एक बंदा लिटरेट हो जाएगा जिंदगी भर की। सेकंड दे रहा हूं सोचने की। अगर दूसरा मॉडल है जहां पे हम 40 लोगों को एक कमरे में बैठा दें और उसी गांव के एक आदमी को बोले कि भाई तुम्हें इन्हें पढ़ाना है, तो वो 3 महीने में 40 लोगों को लिटरेट कर दे सकता है। एक जन को पढ़ाने के 350 रुपए लगते हैं, क्योंकि जो पढ़ा रहा है उसे भी पैसे दे रहे हैं। स्कूल को सेटअप करने के लिए ब्लैक बोर्ड चाहिए, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर वगैरह देने पड़ते हैं, इसलिए 350 रुपए। और स्कूल का बच्चा जब एक इंडिविजुअल एडल्ट पढ़ाता है तो सिर्फ 100 रुपए। इतने में हम अगर देश को लिटरेट कर दे सकते हैं तो क्यों ना किया जाए। यस, जरा महंगा बंदा हूं बुलाने के लिए, जहां जाता हूं मैं कमिटमेंट लेके जाता हूं। तुम्हारा कमिटमेंट है 1 लाख पंजाब के नागरिकों को तुमको इस साल के अंदर में एजुकेट कर देना है। कॉस्ट सिर्फ 3.5 करोड़ रुपया अपर लेवल में, और नीचे के लेवल में 1 करोड़ रुपया। एवरेज में 2 से 2.5 करोड़ रुपए सिर्फ तुम्हें लगेंगे। इन सब का साथ चाहिए, मैं तुम्हें साथ दूंगा हर कदम पे। बोलो मंजूर है तुम्हें ये? डन? तो खड़े होकर जरा एक बार उसको इशारा कर दो। क्या दोस्तों मंजूर है ना?
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, यू सी थिंग्स एज दे आर एंड आस्क व्हाई। यू सी थिंग्स एज दे आर एंड आस्क व्हाई। आई ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वर एंड आस्क व्हाई नॉट। क्यों नहीं होगा? होगा। अगर पंजाब में नहीं होगा तो कहां होगा यार? हर चीज में ये स्टेट आगे है, रहा है, रहेगा। तो हम सबको ये जरूरी है कि आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ स्टेट जो कि हर चीज के अंदर में आगे रहे। वो स्वाधीनता की लड़ाई अगर रही है, फॉर एवरी भगत सिंह वी हैड अ खुदीराम बोस आल्सो। सो दीज आर स्टेट्स वी हैव फॉट फॉर दैट इंडिपेंडेंस, वी हैव टू फाइट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इलिटरेसी आल्सो। So let us do it. और ये एक प्रोग्राम है, मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूँ लिटरेसी के लिए। You take up educational programs or you take up health programs or you take up skilling of people. हमारा काम इतना बड़ा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वाह यार ये भी क्या ऑर्गेनाइजेशन है। So दोस्तों, वेरी हैप्पी कि हम आए और आज ये बात करी। बस ये बात सारी जुनून की है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशिया, पूछा चिड़िया से कैसे बना आशिया, बोली चिड़िया भरनी पड़ती है उड़ान बार 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 बार, दिन का उठाना पड़ता है। दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, दिन का तो उठाना पड़ेगा। तैयार होना करने के लिए? So let me end with what I always end. Guys, you have heard this, let me end this. The biggest gift we are given, friends, is the power to touch a life. एक जिंदगी बदलने का पावर लकी हो कि तुम्हें मिला है। The power to touch a life, let me tell you, भगवान को काम है, कर सकते हो। The biggest gift we are given is the power to touch a life, to make a difference in the circle of life. वो जो सर्कल ऑफ लाइफ है ना, उसकी पॉवर्टी का, उसको आप ब्रेक कर सकते हो। So biggest gift we are given is the power to touch a life, to make a difference in the circle of life. If we reach out with our hand, heart and soul, the magic will begin to happen as the wheel begins to roll. So presidents and governors, let us turn the wheel together so all humanity thrives. For we have the power and the magic to create hope in the world as we serve to change lives. Thank you very much. Namaskar. So there is a very great motivational word. कहते हैं दिल में आग लगाओ, पूछो कर मत। दिल में आग लगाओ। So do you think कि थोड़ी आज हार्ट वार्मिंग होगी? श्योर? पंजाब